Good morning, class. Today we'll take the last topic of the chapter, lifeline of national economy. So here we will discuss the communication. Till here we had discussed the transportation. Now when we talk about the communication, it is transport and communication cannot be separated. They are equally go while we are discussing the commercial activities. So ever since human appeared on the earth, they have suffered from different they have used different means of communication, but pace of the changes has been rapid and moderate. Modern time and long distance communication is far easier without physical movement of the communicator or receiver. Personal communication and mass communication, including television, radio, press, film, etc., are the major means of communication in the country. So, in the Indian postal network, the largest in the world, and the handle parcels as well as the personal written communication. Cards, envelopes are considered the first class mail and air lifted between stations covering both land and air. The second class मेल इंक्लूड्स द बुक एंड पैकेट्स. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट में आपका आ गया विच हैंडल द पार्सल रिटर्न कम्युनिकेशन, कार्ड्स, एनवलप. एंड सेकंड में आपका है ये आपका सेकंड है द मेल इंक्लूड्स बुक एंड पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, periodicals, etc. They carried the surface mail covering the land and water transport. To facilitate quick delivery of mails in large town cities, 6 mail channel have been produced recently, and they are called the Rajdhani channel, Metro channel, Green channel, Business channel, Bulk mail, and channel of periodical channels. So India has one of the largest telecom network in Asia, including urban places. More than two-thirds of villages in India have already covered with the subscriber triangulating STD telephone facilities. In order to strengthen the flow information, the grassroots higher level. Grassroots to higher level का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो ये हर चीज़ को कवर करते हुए चलता है. एंड द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल प्रोविज़न टू एक्सटेंड द 24 आवर STD फैसिलिटी टू एवरी विलेज इन द कंट्री. देखिए जब ये चैप्टर लिखा गया होगा शायद तब इस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं थी. आज तो एवरी वन इज़ हैविंग मोबाइल फ़ोन, तो कम्युनिकेशन हैज़ बीन बिकम सो ईजियर. बट हम NCERT को पढ़ रहे हैं, हमें किस पॉइंट से पढ़ना है? एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. ठीक है, तो इसको इतना हमें देखना ही है. लेकिन आज ये सब चीज़ें बहुत दूर हो चुकी हैं. STD कॉल और ये सब सब कुछ हमारे पास मोबाइल में ही अवेलेबल है. आज हम वीडियो कॉलिंग या ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत दूर जा चुकी हैं. ठीक है, सो ऑल ओवर इट हैज़ बीन पॉसिबल बाय द इंटीग्रेटिंग the development in shape of technology and communication. Mass communication provides entertainment and create awareness among the people uh, about various national programs, policies. It includes the radio, television, newspaper, magazines, book and films. All India Radio Akashvani broadcast a variety of programs in national, regional, local language for various categories of the people spread over different part of the country. Doordarshan, the national television channel, and the national television channel, which is of India, is one of the largest terrestrial network in the world. It broadcasts a variety of programs, entertainment. Now you can see in today 21st century or after first decade, it has been possible that more and more connectivity is given to the world level. Education and sports program have been introduced for people different age groups. So India publishes large number of newspaper and periodicals, and they are so different type depending upon their periodicity. Newspapers are published in about 100 languages
and dialects. Did you know that the large number of newspaper published in our country, that is in Hindi followed by English and Urdu. India is the largest producer of feature films in the world and produce short films, video and features film, video short films. अभी आप शॉर्ट फिल्म्स का अगर कहें तो आपको पता ही है कि फिल्म 2-3 मिनट से लेकर कितनी भी लंबी बनाई जा सकती है. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म CBF सर्टिफिकेशन इज अथॉरिटी सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड द फॉरेन फिल्म्स. तो इतना तो कम्युनिकेशन के बारे में था आपका मास कम्युनिकेशन. अब आपका आता है ट्रेड. तो ट्रेड कैन बी ऑफ टू टाइप, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है, या फॉरेन ट्रेड. और उसके बाद हमारा आता है टूरिज्म ट्रेड, जो कि आज बहुत बढ़ रहा है, ठीक है. तो इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड का मीनिंग क्या है अगर हम कहें तो द एक्सचेंज ऑफ द the commodities among the people, states and countries is referred as a trade, and the market is the place where such exchanges take place between the trade between two countries is called international. मतलब दो देशों के बीच में जो ट्रेड है वो इंटरनेशनल है, विद इन कंट्री है वो आपका नेशनल है. इट may take place through the sea, air, land, routes, etc. While local trade is carried in the cities, towns and villages, states, a trade carried between the two or more states. Advancement of international trade country is an index of economic prosperity. मतलब जिस कंट्री में जितना भी ज़्यादा ट्रेड पॉपुलर है वो उसकी प्रोस्पेरिटी को जाता है कि ये कंट्री कितना प्रॉस्पर है. सो देयरफॉर कंसीडर द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ अ फॉर कंट्री. तो किसी भी कंट्री का अगर बैरोमीटर आपको चेक करना है तो इसी से पता चलेगा कि उसका ट्रेड सिस्टम कैसा है. तो रिसोर्सेज आर एंड द स्पेस बाउंड. नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड. ये भी हम जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड की इंपॉर्टेंस क्या है. अगर हमारा कनेक्टिविटी दूसरे कंट्रीज़ के साथ नहीं है तो हम कहीं पर भी स्टे नहीं करते हैं. तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड. अगर हम कहें ट्रेड क्या है तो ट्रेड के टाइप्स हो गए आपके, ठीक है. फिर उसके बाद अगर हम कहें कंपोनेंट्स क्या है तो कंपोनेंट्स आपके इसके हो गए एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है. तो ये दो कंपोनेंट है. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड कंट्रीज बिटवीन डिफरेंस द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट व्हेन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट. अगर हम कहें किसी भी कंट्री में ट्रेड ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और इम्पोर्ट के कंपैरिजन, तो वो उसके लिए क्या होगा, फेवरेबल होगा. अगर कहीं इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो वो क्या होगा, इनफेवरेबल होगा, मतलब अनफेवरेबल होगा. यानी उस कंट्री के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो कंट्री फिर क्या है, वीकर है, उसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, वो कर्जे में रहेगा, ठीक है. इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशंस विद द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल जोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. सो कॉमोडिटी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज इंक्लूड जेम्स. अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन और बन जाता है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ कॉमोडिटीज़ वी एक्सपोर्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ कॉमोडिटीज़ वी इम्पोर्ट. सो एक्सपोर्ट करने में हम क्या है, हमारा रैंक क्या है, हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं. तो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो है हमारे जेम्स, ज्वेलरीज, केमिकल्स, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, एलिड प्रोडक्ट्स, और द commodities imported in India that is included the petroleum, crude and the products, gems, jewelries. ये हम इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं. मतलब हमारे यहाँ की क्वालिटी क्या है और वर्ल्ड में क्वालिटी क्या है, ठीक है. सो बेस मेटल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, एग्रीकल्चर एंड एलिड प्रोडक्ट्स. इंडिया हैज़ emerged as a software giant at the international level, ठीक है. इट इज़ अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आप ये देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो हमारे यहाँ बढ़ता ही जा रहा है. बेंगलुरु इज़ वन द कैपिटल ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया. अब हम आते हैं टूरिज़्म पे. टूरिज़्म क्या है, टूरिज़्म एक ट्रेड के जैसे ही हो गया है. मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन दिस टूरिज़्म इंडस्ट्री. टूरिज़्म प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन. मतलब हम अपने देश को, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम सुनते भी हैं कि आप अगर साउथ में जा रहे हो तो लगता ही नहीं है कि इंडिया का पार्ट होगा, क्योंकि देयर पीपल डोंट स्पीक हिंदी, सेल्डम दे स्पीक हिंदी. अगर हम जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ पर भी हिंदी का कुछ ऐसा मतलब इतना अच्छा वो नहीं है. तो ऐसे ही इस कंट्री को बांधे रखने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम शुरू किए गए हैं. वन इंडिया करके, इफ़ यू वॉच टेलीविज़न तो उसमें भी आपका आता है एक भारत,
ठीक है, श्रेष्ठ भारत ये इसका एक मेन स्लोगन है, अगर आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट से भी कांट से कि अगर मैं तमिलनाडु में रहती हूँ तो मुझे बनारसी साड़ी अच्छी नहीं लगेगी, ऑब्वियसली आई लाइक दैम। ठीक है, अगर मैं जम्मू कश्मीर में हूँ तो मुझे वहाँ तेलुगु मतलब तमिलनाडु का कुछ ऐसा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा। मीन्स इफ आई एम सिटिंग एनी कॉर्नर ऑफ माई कंट्री, आई विल बी लाइकिंग द हैंडीक्राफ्ट ऑफ माई कंट्री। तो ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत के अंतर में चलाया गया है, और इनकी कॉमोडिटीज़ को पॉपुलर करने के लिए भी। ठीक है, सो handicraft culture pursued also helps the development of international and understanding about our culture and heritage. Foreign tourists visit India for heritage tourism, ecotourism, देन एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म। तो ये हर तरह का टूरिज्म जो हमारे कंट्री में चल रहा है। देर इज़ अ वास्ट पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म इन दिस अपकमिंग इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, क्योंकि वी हैव अ लॉट्स ऑफ स्कोप। इफ वी गो टू ईस्ट टू वेस्ट साउथ और नॉर्थ कहीं भी जाएँ तो वहाँ पर इसका काफ़ी स्कोप है। दिस industry is flourishing, and hope in coming years it will grow more and more. So we complete this chapter here. Thank you. Have a nice day.